Hello everyone, welcome to the Geo-Ecologist. I am Dr. Krishnanand and you have been watching my videos on various topics of geography on my channel, the Geo-Ecologist. If you are new to this channel, consider subscribing our channel, and for the earlier videos, you can go to our playlist section. Now before we move ahead, for the new users who are not aware about my courses, आप लोग मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि है thegeoecologist.com और वहाँ पे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं रिलेटेड टू ज्योग्राफी ऑप्शनल और अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है। आइए अब हम जानते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल 2022 में पेपर 2 के क्वेश्चंस के बारे में और थोड़ा उससे रिलेटेड डिस्कशंस करते हैं। सो फर्स्ट थिंग दैट यू ऑब्जर्व हियर इज इन सेक्शन ए, पहला क्वेश्चन जो होता है वो 20 नंबर का मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है पेपर 2 में, विच इज फॉर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं 2022 का। तो यू विल ऑब्जर्व कि ये 10 प्लेसेस हैं जिनके बारे में आपको 30 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है और मैप के ऊपर मार्क करना है उनका लोकेशंस। द फर्स्ट प्लेस इज तरंगमबाड़ी। सो इफ यू ऑब्जर्व हियर इट्स तमिलनाडु Coromandel coast, and remember it was one of the places for Dutch settlements as well. That's the first place on the map. Then you observe Mahe, so it is part of the Pondicherry or you say Puducherry Union Territory part, and which is situated in Kerala coast. That's important. Then you have Bomdila, very famous place in Arunachal Pradesh, West Kameng district, and then you have Dhol Sadia Bridge. Now this is very important location because it talks about connectivity between the northeastern states, and remember connectivity between northeast states have been very important part of geography studies. So if you observe क्या है यहाँ पे, भूपेन हजारिका सेतु भी इनका दूसरा नाम है और ये असम को अरुणाचल से कनेक्ट करता है लोहित रिवर के ऊपर। Then you observe here Talakveri, and it is the source of river Kaveri on Brahmagiri hills near this particular Coorg district in Karnataka. Then you observe Satkosya, the very famous Satkosya Tiger Reserve, if you have heard. It's related to the Odisha area near Mahanadi, Angul district. Then you observe Dholavira, and if you know about Harappan civilization, Indus Valley civilization, I'm sure you have heard of this particular site which is in Kutch, right? Then you observe Sonmarg, very famous tourist location in the Ganderbal district of Jammu and Kashmir, a base camp for Indian Army. And remember, very important, it's the location through which you enter Ladakh region through Jozilla Pass, right? And then it's very famous for glaciated terrain and meadows. Then you observe the Maliku Atoll. Now this is an atoll formation, coral reef formation, which is part of the Lakshadweep Islands and which is uninhabited as well. And then the last one is Ganga Sagar, very famous part of the Sagar Island in the South 24 Pargana district, West Bengal. So these are the 10 places which was part of the first question. Now let's look into the B, C and D part of the first question. So B is again, why has extreme particulate pollution remained a festering issue in Delhi NCR region? Again, the same problem about air pollution in Delhi NCR region has been highlighted and asked in the question, which is also related to the wind movement, seasonality and also the particulate emission coming from Punjab and Haryana because of the burning of the haystack and stubble burning. So that is one important question asked here. How do physiography and climate of India explain biological diversity of the country? A very traditional question, part of the physical as well as combination of environmental geography in context to India. So you have to talk about physiographic divisions of India and how each division has a very distinct flora and fauna condition, very important for our country. With suitable example, you should explain this. Desertification leads to soil desiccation and soil loss. You're talking about desertification process. और सबसे पहले जैसे ही ये word आया desertification, इस process में moisture availability की बात करनी है, soil moisture condition की बात करनी है और उससे related factors की बात करनी है। तो ये सारी चीजें आप इसमें discuss कर सकते हैं with examples from India. Then you observe the second question. अब second question में फिर से 20, 15 and 15 marks का distribution. So पहला क्वेश्चन है critically examine, right, the factors affecting unpredictability of southwest monsoon system in India. जैसे ही factors affecting हो गया, इसका मतलब है कि आपको Indian Ocean Dipole, El Nino, La Nina से related बातें और regular seasonal changes की बातें, climate change की बातें, ये सारे factors को include करके इस answer को बनाना है with given map of India. And also second question, peninsular location के ऊपर question आया है कि Indian Peninsula जो है, इसका जो location है Indian Peninsula का,
all open from these three sides, how it is an advantage or how it is giving us a scope to harness non-conventional energy sources, जैसे ocean से related tidal energy, wave energy, wind energy, all these energies are to be talked here और उसके potential sites आपको locate करने हैं, जैसे कि गुजरात से लेके तमिलनाडु एरिया में कुछ एरियाज हैं जहां पे ये आइडेंटिफाई भी किया गया है. Then you observe groundwater contamination related to urban landscape of India. This is very important. Urbanization से relate करना है ground water को in terms of contamination and also in terms of recharge. So major public health issue is coming out and you have to talk about urban case studies in context to Indian cities especially. अब यहाँ पे तीसरे question में देखिए, discuss recent changes brought about institutional framework of एग्रीकल्चर इन इंडिया. मतलब एग्रीकल्चर में इंस्टीट्यूशनल चेंजेस कैसे कैसे आए हैं. जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की, मतलब जहां से आप कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं फार्मर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल सीड बैंक्स हो गया, क्रेडिट एंड बैंकिंग फैसिलिटी हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फैसिलिटी हो गया, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हो गए. तो इस तरह की जो इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज है, जैसे वेयर हाउस है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, उसमें क्या क्या चेंजेस आया है, क्या क्या नया प्रोग्राम्स आया है. सो इन context to what Indian government is also doing, you need to address this particular thing and also evaluate the impact on agrarian economy as well. फिर आप आइए, discuss the continuing disputes on water sharing between riparian states of northwest India. ये specify किया गया है, northwest India की बात है, यानी एक तरफ आप रावी और ब्यास की बात करेंगे और दूसरी तरफ आप नर्मदा से related states की बात करेंगे with water sharing disputes which have been part of many topics, many issues in past also. So इसकी बातें आपको करनी है with pros and cons and the situation. Then soils of India में आ जाइए. Again Indian Council of Agricultural Research की जो ICAR classification है उसमें structure and process की बात है. तो आप देखिए पूछा गया है soils of India are reflections of structure of India and process of India. अब देखिए पेपर 1 में जब आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं और बायोजियोग्राफी पढ़ते हैं तो वहां से रिलेट करना है उसी चीज को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इन टर्म्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. जैसे नेचर ऑफ पेरेंट रॉक स्ट्रक्चर से कंट्रोल होता है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से कंट्रोल होता है, और उसके बाद प्रोसेस है, यानी प्रोसेस मींस एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस यानी क्लाइमेटिक प्रोसेसेस एंड रिवर का फ्लो एंड विंड का मूवमेंट, देन यू हैव ग्लेशियर एंड सो मेनी अदर प्रोसेसेस दैट ऑपरेट. तो ये आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कमेंट करना है. उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखना है जिसमें आप देखेंगे इंडिया इज बेस्टोड विथ रिच मिनरल रिसोर्सेज ड्यू टू इट्स ऑब्वियसली जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर. तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल से रिलेटेड स्ट्रक्चर को भी थोड़ा आपको डिफाइन करना है, इंडिया के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, रॉक स्ट्रक्चर को, और बताना है मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, और इस स्टेटमेंट को रिलेट करना है मिनरल बेल्ट्स के साथ. जैसे फॉर एग्जांपल छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन की बात करते हैं या धारवाड़ रीजन की बात करते हैं, तो आप इसके कॉन्टेक्स्ट में केस स्टडीज देते हुए बात कर सकते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है. अब आते हैं डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग इन इंडिया. रिमेंबर एक तरफ फ्लड इश्यूज तो एक तरफ ड्रॉट इश्यूज, यानी ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम इंडिया में 1970 से चल रहा है, राइट. देन यू सी ड्राई लैंड फार्मिंग पार्ट ऑफ द इनोवेशंस. सो ड्राई लैंड एरियाज में आप क्या फार्मिंग करते हैं इंडिया में, पार्ट ऑफ मोस्टली सेंट्रल इंडिया जहां पे मॉनसून की बारिश नहीं पहुंचती है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, क्या क्या चीजें हैं जो उसमें आप डालेंगे. तो गवर्नमेंट की योजना से रिलेट भी करना है, पेपर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे आइए आप देखेंगे इंसिडेंट्स ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स एंड फ्लैश फ्लड्स इन रीसेंट टाइम्स हैव लेड टू डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पीपल लिविंग इन लो लाइंग एरियाज एंड फ्लड प्लेन्स ऑफ द कंट्री. जैसे बात आई एक्सट्रीम इवेंट्स की, फ्लैश फ्लड्स की, तो अगेन आप क्लाउड बर्स्ट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से इंपैक्ट से रिलेटेड, राइट, फ्रॉम दी केदारनाथ फ्लड टू प्रेजेंट जितनी भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी चीजें आई हैं न्यूज में, उससे रिलेट करके आपको बताना है कि हाउ इट हैज इंपैक्टेड. तो इंपैक्ट्स जब भी आप देखेंगे तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, सोशल इंपैक्ट, कल्चरल इंपैक्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट, ज्योग्राफिकल इंपैक्ट, ओवरऑल चीजों को आप इस तरीके से फैक्टराइज करके डिस्कस कर सकते हैं. पॉइंट हियर इज टू डिस्कस इट. देन इफ यू ऑब्जर्व सेक्शन बी में आ जाइए पेपर 2 के, तो यहां पे देखेंगे इंपैक्ट ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की बात की गई है, जो कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन है. तो अगर आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट पढ़ा है और इसका इंपैक्ट फॉरेस्ट कम्युनिटीज के ऊपर है तो आप डेफिनेटली इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं आसानी से. देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस प्ले अ रोल इन ग्रास रूट लेवल प्लानिंग. ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ यूपीएससी में और ये बहुत जीएस टाइप का साउंड करता है. काफी लोग इस बार कह रहे हैं कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पेपर पूरा जीएस जैसा पेपर था. तो ये गवर्नमेंट के पॉलिसी
पॉलिसी प्लान्स, इससे रिलेटेड चीजें और इसके डिस्कशंस, प्रॉस एंड कॉन्स, ये बातें आपको करनी है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड ग्रास रूट लेवल प्लानिंग से रिलेट करके। देन डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू पोर्ट्स ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। रिमेंबर, जैसे ही हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया तो आप गल्फ के साथ ट्रेड देखते हैं, बाकी एरियाज के साथ ट्रेड देखते हैं, तो नए पोर्ट्स डेवलप जो हो रहे हैं तो एक्सटर्नल ट्रेड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड एज यू नो द न्यू ट्रेड पैटर्न्स और इंडियन ओशन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में नए पोर्ट्स के कुछ एग्जांपल देके आपको बात करनी है। नए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स भी क्रिएट हुए हैं उन पोर्ट्स के साथ साथ, और ये कैसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के इकोनॉमिक बूम के लिए, रीजनल डेवलपमेंट के लिए, वो बातें करनी है। फिर आइए पॉपुलेशन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन है टोटल फर्टिलिटी रेट का जो बिलो रिप्लेसमेंट लेवल है, राइट? अगर डिक्लाइन हुआ इन बहुत सारे स्टेट में तो इसका क्या फ्यूचरिस्टिक असर पड़ेगा। सो इन टर्म्स ऑफ द ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स फॉर फ्यूचर अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन, ये बातें आपको करनी है कि आगे आने वाले समय में अगर ये डिक्लाइन होगा तो पॉपुलेशन का स्टेबिलिटी आएगा, या पॉपुलेशन डिविडेंड अभी जो हमको मिल रहा है वो आगे नहीं मिलेगा। सो दिस इज समथिंग विच इज अ इवैल्यूएटिव क्वेश्चन। इस चीज को आपको पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के आधार पे और फ्यूचर के आधार पे डिस्कस करना है इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया। फिर आइए काला पानी डिस्प्यूट, जो कि बहुत फेमस है, लेक पास वाला जो इश्यू था इंडिया नेपाल ट्रीटी को लेके, जिसमें नेपाल क्लेम करता है उसका सोवरेनिटी ओवर दैट रिवर एंड टू द वेस्ट ऑफ दैट पार्ट, बट इंडिया डिनाइज दैट। तो ये जो क्वेश्चन है ये पर्टिनेंट था और ये जनरली इंटरनेशनल रिलेशंस में पूछा जाना चाहिए था। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में भी ये क्वेश्चन आ गया है, तो हो सकता है आपने अगर आईआर में पढ़ा हो तो डेफिनेटली आप इसको यहां भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे विद सो मेनी फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इसका इंपैक्ट जो होने वाला है, राइट? तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, कनेक्टिविटी, पीस ट्रीटीज, ट्रेड ट्रीटीज, सो इसके सोशो कल्चरल इंपैक्ट्स, इकोनॉमिक इंपैक्ट्स, ये सारी बातें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 रिलेट करता है डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट से, एंड रिमेंबर इट इज आस्किंग व्हाई दिस डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट एंड इनकम्स बिटवीन रीजन्स परसिस्ट इन लार्ज कंट्रीज लाइक इंडिया। ये डिस्पैरिटी क्यों है? अगेन फैक्टराइज इट कि हिस्टोरिकल इश्यूज, ज्योग्राफिकल इश्यूज, कॉलोनियल इश्यूज, उसके जो इंप्रिंट्स हैं से लेके अभी तक डेवलपमेंटल इश्यूज कैसे चला आ रहा है, क्यों डिस्पैरिटी है। सो राइट फ्रॉम दी लैंड रीऑर्गेनाइजेशन से लेके बाकी सारी चीजें आप बात कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग से लेके बहुत सारी बातें। इसमें दूसरा पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है रीसेंट एडीपी प्लान। रिमेंबर ये जो एडीपी प्लान है, एस्पिरेशनल डेवलपमेंट प्लान जिसको आप बोल रहे हैं फॉर द स्टेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 ब्रॉड सेक्टर्स कवर होता है, तो उसको डिस्कस करना था, जैसे हेल्थ और न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड स्किल डेवलपमेंट अपार्ट फ्रॉम द बेसिक नीड्स, जिसको ये फोकस करेगा। तो पुअर स्टेट्स इन इंडिया के डेवलपमेंट के लिए ये एडीपी प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करना था विद ऑल द फैक्टर्स एंड क्रिटिकली एग्जामिन। फिर से आता है इसमें द IRNSS नाविक प्रोग्राम। ये क्वेश्चन पहले भी आना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है इंडिया का, जिसमें सैटेलाइट प्रोग्राम से रिलेटेड है, ये मॉनिटरिंग से रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एंड नेविगेशन से रिलेटेड है, जिसमें एक और चीज थी जिसका नाम था गगन प्रोग्राम। तो ये सब बातें करके आपको इसको डिस्कस करना था कि इसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या रोल है, रेगुलर हमारे नेविगेशन सिस्टम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये बातें आप इसके अंदर कर सकते हैं। और एग्जामिन द रोल ऑफ हाई पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन इन इंडियन in making them more vulnerable। ये डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ कि अगर पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन स्लम एरिया में ज्यादा होगा तो वो और ज्यादा वल्नरेबिलिटी को बढ़ाएगा। वल्नरेबल मतलब टू बी वुंडेड, कि आपको वुंड किया जा सके, आप कमजोर हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन है वल्नरेबिलिटी। और अगर वल्नरेबिलिटी है मतलब पैंडेमिक कंडीशंस लाइक कोविड-19 में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसको रिलेट करना था कि ऐसा क्यों है और इसका रोल क्या है। मतलब अगर ओवर कॉन्सेंट्रेशन है तो चांसेस है कि ये पैंडेमिक में और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, और प्लानिंग से एसोसिएट करके इस मैनेजमेंट को रिलेट करके आपको आंसर को कंक्लूड करना था विद सम केस स्टडीज और सम एग्जांपल्स ऑफ इंडियन सिटीज लाइक मे बी दिल्ली एंड मुंबई। देन फर्दर इफ यू ऑब्जर्व द 7th क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन में आप देखिए सैलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया मतलब गुजरात से लेके केरला तक की बात आप कर सकते हैं, और इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पॉलिसी रीजन, स्पेशली आप कुछ केस स्टडीज गुजरात से और महाराष्ट्र से लेके बता सकते हैं, राइट? दैट्स इंपॉर्टेंट। फिर द इमर्जेंस ऑफ लिंग्विस्टिक रीजन्स एंड स्टेट्स इन इंडिया इज अ वेरी ट्रेडिशनल टिपिकल क्वेश्चन, जो कि पॉलिटी से भी रिलेटेड है, गवर्नेंस से रिलेटेड है, जो इसमें सिंपली पूछ दिया गया है। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं लगा होगा लोगों को सॉल्व करने में कि लिंग्विस्टिक रीजन्स कैसे डिवाइड हुए इंडिया में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, और
ग्रेट सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल उसमें क्या था, और वहां से हिस्टोरिकल रीजन से प्रेजेंट स्टेट तक हम कैसे पहुंचे हैं, कि हमारे पास कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कैसे डिवाइड हुए, लिंग्विस्टिक प्लुरैलिटी कैसे एक आधार है इंडिया में, ये चीजें की बात करनी है। एंड देन व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ अर्बन स्प्रॉल, तो अर्बनाइजेशन अगेन कम्स इनटू द पिक्चर एंड अर्बन स्प्रॉल इज द मेनेस, मींस अर्बन एरिया इज अ लिविंग बीइंग, ये स्प्रॉल कर रहा है, फैल रहा है और बगल की जमीन को अपने अंदर ले रहा है, विच इज नॉट प्लान्ड वे। तो इसकी बात करनी थी। अब इसमें हाउ हैव न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स सपोर्टेड स्प्रॉल डेवलपमेंट। अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स होगा, रेडिएट आउट करेगा सिटी से, तो स्प्रॉल उसी लाइन पे होगा, न्यू डेवलपमेंट उसी लाइन पे होगा, और अनवांटेड अर्बन डेवलपमेंट भी होगा विच इज अनप्लान्ड। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू टॉक अबाउट विथ गिवन स्ट्रक्चर। और याद रखिए थियरीज जो है इससे रिलेटेड वो आपको पेपर 1 से ही लेने पड़ेंगे, पेपर 2 में कोई थियरी नहीं है आपके सिलेबस में। तो थियोरेटिकल कंपोनेंट ऑफ अर्बनाइजेशन और एनी अदर पार्ट शुड कम फ्रॉम पेपर 1 विथ रेफरेंस टू दैट थियरी, कि ये चीजें इंपॉर्टेंट होता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में एग्रो क्लाइमेटिक एंड लैंड कैपेबिलिटी इंडिकेटर्स की बात की गई है। अगेन कम्स टू मैक्रो एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन इन इंडिया। तो ऑफ कोर्स आप अगर ये लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस और एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया आपने पढ़ा है, तो आप इसको इंडियन एग्रीकल्चर के साथ जोड़ के देख सकते हैं और कुछ मैप के साथ एग्जांपल देके बता सकते हैं कि किस रीजन में कौन से क्रॉपिंग patterns are suited and which are not suited, what is the disparity in India, what is the pattern in India, all those things you can talk about with factors. And then comes geopolitical significance of Quad, right? तो क्वाड फॉर्मेशन अगर आप देखिए जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड जापान, ये जो है ये इंडो पैसिफिक रीजन के रिलेटेड क्वेश्चन है, और इससे इंडिया पैसिफिक का जो टाई है, इंडिया का प्रेजेंस जो है पैसिफिक एरिया में स्ट्रांग होता है। तो इसको विथ रेफरेंस टू मरीन ट्रेड आपको इस रीजनल ट्रेड के ऊपर बताना था, और ये एरिया बहुत कंसर्न में है वर्ल्ड में, बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है, राइट, लेबर मार्केट भी है। सो फॉर द वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड से जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो कि जीएस का भी पार्ट हो सकता था। फिर आप देखिए इवैल्यूएट द रोल ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2003 इन प्रोवाइडिंग एक्सेस ऑफ फूड टू द पुअर इंडिया, और इसकी बात बहुत सीधे सीधे ये क्वेश्चन डायरेक्टली फूड सिक्योरिटी से रिलेट कर रहा है, तो आप इसमें इस एक्ट के अंदर आने वाली योजनाओं के अंदर आने वाली बात कर सकते हैं, और न्यू स्कीम्स के रिलेट करके भी बात कर सकते हैं कि कैसे हंगर इंडेक्स में इंडिया पिछड़ रहा है, तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है फूड सिक्योरिटी से साथ साथ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी कितना इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ये सारी बात आप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पेपर में। तो अगर ओवरऑल पिक्चर को देखा जाए तो समझ ये आता है कि इंडिया पेपर 2 जो था 2022 का, इट वाज मोर ऑफ अ जीएस ओरिएंटेड पेपर, जो आप जनरल स्टडीज में भी पढ़ते हैं, वो ओवरलैपिंग क्वेश्चन था, कोई बहुत डीप रूटेड क्वेश्चन नहीं था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर डायरेक्ट बट अप्लाइड बहुत था, इट मींस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वाज रिक्वायर्ड इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस विथ इंपॉर्टेंट मैप्स एंड इंपॉर्टेंट केस स्टडीज अक्रॉस इंडियन सेक्टर्स, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट रहा। और दूसरी चीज जो समझ आती है कि अगर आप पेपर 1 के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ते हैं, थियरीज अच्छे से पढ़ते हैं, और उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके आंसर्स बहुत स्मार्ट दिखेंगे, बहुत अच्छे दिखेंगे। अदरवाइज सिर्फ वो जीएस के आंसर की तरह दिखेगा। तो आगे की तैयारी के लिए भी जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको ध्यान देना चाहिए कि पेपर 1 को पेपर 1 की तरह पढ़िए, प्लस इंडिया में भी अप्लाई करना सीखिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि थियरीज और कॉन्सेप्ट्स पेपर 1 से ही आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी बात, गवर्नमेंट की योजनास, पॉलिसीज, ये जो एक्ट्स हैं, राइट, ये सारी बातों का एक लिस्ट बना के रखिए सेक्टर वाइज कि क्या हो रहा है, हमारा पॉलिसी क्या है, प्रोग्राम क्या है, हम क्या स्टेप ले रहे हैं फ्यूचर के लिए। तो गवर्नमेंट की योजनास अगर आपके फिंगर टिप्स पे है तो पेपर 2 में डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। सो ऑल माय बेस्ट विशेस टू ऑल द एस्पिरेंट्स for future. Enjoy.